Can you tell me? Students, can you tell me what exactly we did in the last lecture? Good morning, Chirag. कहाँ तक हम लोगों ने फिनिश किया? Okay, we did till equipotential surfaces. Fine. Did I give the formula for potential at a point, students? Okay, fine, Chirag. And students, is the audio and video fine with y'all? All of y'all? Okay. Because of fine, students. I told you about potential at a point we consider. Did I tell you about potential energy, students? Electrostatic potential energy? Electrostatic potential energy, students. Okay. Please pay attention. We did potential at a point we consider. And I told you that potential is a scalar quantity, we got it. Okay, students, did we find out the mathematical relation? Did I prove the mathematical relation for potential at an arbitrary position, theta comma r? उसका formula मैंने derive किया था ना? 1/4 pi epsilon naught p cos theta upon r square we consider. To recollect, remember? फिर मैंने बोला था, okay, चिराग is saying it yes. फिर मैंने बोला था potential at equator. चिराग, potential at equator क्या होगा? What is the formula for potential at equator we consider? What will be the answer? Chirag, unmute yourself and answer so that all of them can listen, because there are certain students who don't learn, who do not read. Textbook read नहीं करते, learn भी नहीं करते, notes को भी go through नहीं करते. If possible, अगर unmute कर सकते हो तो चिराग answer दो. Yes. Potential at equator. 0. At equator is 0. Absolutely. Chirag, somebody is also giving an answer. 0 we consider. Okay. So is it 0 we consider? Not at all. Potential at equator, cos of theta is cos of 0 and cos of 0 is 1. Please, potential at equator का answer plus or minus में. See, somebody had posted. Ghazafar, तूने answer दिया 0. Ghazafar? Yes, sir. How can you give an incorrect answer? Feel like giving one punch onto your face. हाँ Ghazafar? तूने answer 0 दिया तो देख, चिराग ने भी गलत answer दे दिया. चिराग also is writing 0. मैंने potential at equator पूछा है ना? तो equator पे cos of 0 क्या हो जाएगा? Cos theta cos of 0 क्या हो जाएगा students? 1. और अगर वही मैंने अगर point उस तरफ ले लिया तो cos of 180 क्या हो जाएगा? -1. तो फिर तो does potential become 0 at equator? Not at all. Plus or minus में आएगा. This is not done. 1/4 pi epsilon naught plus or minus p upon r square आएगा in that case. अब मुझे बताओ what exactly potential at equator का मैंने पूछा तो क्या आंसर आएगा? Yes, now answer. Chirag answer. Ghazafar answer. Himanshu, Mala, what are you doing? Are you studying? Yes, answer students. बोलो. अगर मैंने इक्वेटर पे ले लिया तो what exactly? थीटा क्या हो जाएगा?
थीटा क्या हो जाएगा, 0 या 90? Razafar, 0. the potential will be 0, but cos of 90 will be 0. Therefore, potential at equator is 0. Agree students? और ये फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव किया था, potential at a point on the equator and potential at a point along the axis we consider. Okay, ये सारे हम लोग ने डिस्कस किया था in the last lecture. I made it very clear. Okay, I told you about electric dipole moment also. I gave you the formula for torque acting on electric dipole moment. Give me the formula for torque acting on electric dipole moment, students. What's the formula for torque acting on electric dipole moment? क्या आंसर होगा? P cross E. Absolutely correct. It's P cross E we consider, and P is sin theta we consider. Okay, now I want any one of you all to derive the formula for work done. Work done in order to rotate an electric dipole. Can you give me the formula for work done? Please pay attention. The heading I'm putting it as work done in rotating a dipole in an external uniform electric field intensity E. This work done, students, is also called as electrostatic potential energy of electric dipole. Students, क्या ये statement समझ में आया? क्या लिखा हुआ मैंने? Work done in rotating a dipole in an external uniform electric field of intensity E. And this work done is considered to be as your electrostatic potential energy we consider. लेकिन ये किसके लिए? For a dipole I'm trying to consider. Anybody who can tell me इसका explanation कैसे होगा? Anyone? Students, is the audio and video fine with y'all? Is it clear, and are you able to hear me very loud and clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. अब मुझे बताओ, चलो कोई बता सकता है work done. चलो work done in rotating a dipole. Yes, Siddharth. Anyone? See, one thing, can anybody give an answer, or shall I put forward the answer? It's no fun. I don't know about it. कि अगर मैं ही क्वेश्चन पूछूं और मैं ही आंसर दे, तुम थोड़ा सा यूज करो अपना ब्रेन, you can get the answer accordingly. अब देखो, प्लीज अटेंशन, वर्क डन रोटेटिंग. अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है? आई गेटिंग इट? ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये है कि अगर सपोज मैंने एक साइड पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लिया है, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, दूसरी तरफ मैंने नेगेटिवली चार्ज प्लेट लिया है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है सर? यहाँ पे एक बार एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई है, और ये कौन सी है सर? ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो आपने यहाँ पे ये बताया हुआ. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्लेट की वजह से. एग्रीड? अरे इसके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किस तरफ जा रहा है? So the electric lines of forces are going from positive towards negative, positive to negative. These are all the electric lines of forces. They originate from positive and they terminate towards the negative. Agreed, students? And they are all parallel. अभी मैंने क्या लिया है? मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया. क्या लिया? इलेक्ट्रिक डाइपोल. Absolutely correct. देखो चिराग आंसर दे रहा है, चिराग पोस्ट कर रहा है आंसर्स. Okay, he's giving me a direct message. That's why maybe the rest of them may not be able to read it, but he's giving a correct answer. See, one thing, पढ़ने वाले होंगे ना, जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाला है वो certainly उनको बोलना नहीं पड़ता. Okay, they will certainly do their work regularly, they will do their job properly, and they will move further ahead. जिनको नहीं पढ़ना है, जिन्होंने ठान लिया है कि whatever happens, I'm going to be the way I am, and I or institute can't help it. We can try our best to a certain extent. As a teacher, I'll try my best to see to it. I can modify you. As an institute, will be after your life to see to that you do it better.
but the end of it you have to work on to that. अगर तुम ही ना काम नहीं करोगे तो उसका मतलब नहीं है कुछ. अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ध्यान से देखना. सपोज अगर मैंने कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया है, ओके, मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया है और डाइपोल को मैंने ऐसे अलाइन करके रखा हुआ, उसका मतलब यहाँ पे उसका नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे उसका पॉजिटिव चार्ज है. एग्रीड. तो ये सोचो कि मैंने डाइपोल को रोटेट किया है इस तरफ. तो आई एम डूइंग सम वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि जैसे मैंने उसको रोटेट किया एट एन एंगल थीटा, तो मैंने रोटेट किया एट एन एंगल थीटा, तो होगा क्या. तो तुम बोले सर ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस डायरेक्शन में जाना चाहता है टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, और ये नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जाना चाहता है. यानी ये डाइपोल अपने आप को अलाइन करना चाहता है. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट किस तरफ है? सर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है? पॉजिटिव टू नेगेटिव. अभी मुझे बताओ यहाँ पे विल देयर बी एनी टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल? यस. अभी ये सोचो कि यहाँ पे जो टॉर्क है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो टॉर्क अगर मैं देता हूँ दैट इज फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, कंसीडर. ओके, फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, लेट्स से द डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल. सो अगर मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट d थीटा इज स्मॉल, व्हाट अबाउट द वर्क डन इन दिस केस इज आल्सो वेरी स्मॉल इन रोटेटिंग द डाइपोल. ये जो वर्क डन है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. कैन यू गिव मी द फॉर्मूला फॉर वर्क डन? कैन यू गिव द फॉर्मूला फॉर वर्क डन? हां सर, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? सर टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट. सिंपल है. वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अगर सपोज कोई चीज को तुम्हें सीधा भेजना हो, मोशन स्ट्रेट लाइन में चाहिए, तो व्हाट एग्जैक्टली द फॉर्मूला फॉर वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. लेकिन अगर उसी चीज को तुम्हें रोटेट करवाना है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो उसके लिए क्या करोगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स यहाँ पे टॉर्क आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट d थीटा है. अगर सपोज मैंने बोला कि ये जो डाइपोल है इट अंडरगोस अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट d थीटा, वर्क डन इज आल्सो वेरी स्मॉल. But we are trying to find out work done for the total displacement we consider. So what exactly the total work done we consider is, will be integration of dw, okay, which is equal from 0 to w, that is 0 to w, which is integration of what? Torque into d theta we consider. What's the formula for torque? So torque is given by the formula P cross E. रज़फ़र ने भी बताया था. तो टॉर्क को कैसे लिखोगे? सर टॉर्क को हम लिखेंगे PE sin थीटा. थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये तुम्हारे न्यूटन मीटर में होगा. क्या इतना क्लियर है सबको? इज दिस मच क्लियर विद एवरीबॉडी? Yes, sir. ऑल द स्टूडेंट्स हु आर, those who are inside the lectures, please is it clear with everyone? तो यहाँ पे मैंने लिखा है टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, टॉर्क इज इक्वल टू P sin थीटा है. आई नीड टू फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन. Total amount of work done, यानी for initial, let us say that this particular dipole moment is initial at an angle theta 1 and then it is getting displaced to angle theta 2. So can I get a relation? यानी मुझे lower limit मिला, upper limit मिला, integration of dw क्या आ गया? Integration of dw मुझे w मिल गया. Agreed? That is w, I'm getting it. Now can I solve it further? Yes. तो देखो work done का फॉर्मूला क्या होगा? तो वर्क डन का फॉर्मूला टॉर्क इनटू थीटा, सो इट्स इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क की जगह पे क्या होगा? सर PE sin थीटा इनटू d थीटा. स्टूडेंट्स इनिशियल कौन सा एंगल है? थीटा 1. फाइनली कहां पे जा रहा है डाइपोल? थीटा 2. अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ पे P का मतलब क्या? व्हाट इज P स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट्स? एब्सोल्युटली, Ghazafar has given the answer also. What does P stands for? Electric dipole moment, और वो हमेशा कांस्टेंट होगा. for a given dipole P is always constant. E का मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो यूनिफॉर्म है वो भी कांस्टेंट है. इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म्स को इंटीग्रेट नहीं करते हैं तो हम P बाहर निकाल देते हैं स्टूडेंट्स. अभी क्या बचा मेरा? इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा इनटू d थीटा इनिशियल टू फाइनल. एंड मुझे ये बताओ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा इनटू d थीटा स्टूडेंट्स? कम ऑन PCM स्टूडेंट्स, मैथ्स Cos. वाले. Absolutely correct. Integration of sin theta and cos theta. Sorry, integration of sin theta and d theta. What exactly is it? Minus cos theta. Initial to final. Agreed, students? Is this clear with everyone? Yes, sir. Yes. Now, if I happen to go for the limits,
तो लिमिट्स में क्या होगा, अपर लिमिट आएगा, बाद में लोअर लिमिट आएगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखना अभी, पीई माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अगर मैं रीअरेंज करूं, if I'm trying to rearrange in this case, are you getting it? So minus, sorry, अगर ये माइनस हमने बाहर निकाल दिया, वेरी सॉरी, माइनस से बाहर निकाल, ओके, ध्यान से दोस्तों, मैंने माइनस से बाहर निकाल दिया, आई एम राइटिंग इट पीई cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, एग्रीड, ये माइनस से बाहर आ गया इसमें, और फिर मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिया। नाउ स्टूडेंट्स, कैन आई रीअरेंज द टर्म्स? यस। अगर सपोज मैं थीटा 1 आगे लेता हूँ, थीटा 2 पीछे, क्योंकि नेगेटिव तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और देखो, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, PE cos theta 1 minus cos theta 2, and this is the answer for work done, which is equal to potential energy, electrostatic potential energy. This answer will be true. क्या ये क्लियर है? Is this clear with everyone? Fine, Chirag. Why students are coming so late? Students are coming so late. Okay. तो ये तो तुम्हारा फॉर्मूला फॉर वर्क डन और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी ध्यान से देखना स्टूडेंट, अभी देखो मुझे आंसर देते रहो प्लीज, ध्यान से सुनना। सपोज ये पॉजिटिव है, अभी ये सोचो ये जो कैप है ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव है डाइपोल का। ओके, चलो मैं यहाँ पे नेगेटिव बता देता हूँ। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, सोचो कि ये डाइपोल है अभी, अभी पॉजिटिव नेगेटिव तुम्हें दिखाई दे रहा है। सपोज अगर मैंने डाइपोल को ऐसे रखा, तो मुझे ये बताओ क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ? हाँ स्टूडेंट्स, अगर डाइपोल को मैंने ऐसे दिखाया तुम्हें, it's stable, please speak it out. I have no two eyes in that case. I have to see it back over here onto the device. I'm over here, I'm looking over here on the board. अभी देखो स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो क्या बोलोगे तुम? Stable. यहाँ पे मूव होगा क्या, डाइपोल रोटेट करेगा? No, sir. नहीं, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर सपोज मैंने डाइपोल को ऐसे रखा, तो क्या वो रोटेट करेगा? Yes, sir. ओके, तो अभी मुझे बताओ व्हाट एग्जैक्टली डाइपोल का, व्हाट एग्जैक्टली द इनिशियल पोजीशन विल कंसीडर विल बी? इनिशियल पोजीशन कितना है? व्हाट इज 90. इनिशियल? So in that case, it's 90. Final, अगर तुम बोलोगे 0, yes, we can consider that also. So initial to final, you get it. Agreed? Agreed, students. अगर suppose मैंने डाइपोल को ऐसे रखा, तो is it stable or unstable? Unstable. Unstable. It's an unstable we consider. Agreed? Yes. तो यहाँ पे होगा तो क्या होगा, क्या है, रोटेट करेगा पूरा? Yes. So it will rotate from that way. Suppose अगर if I take it as this is 0 degrees my initial position, and if I take it over here, final position that means it's close to 180. तो अगर सपोज मैंने इनिशियल पोजीशन 0 लिया था, देखना इनिशियल पोजीशन अगर मैंने 0 लिया, फाइनल 180 लिया, तो व्हाट इज माय आंसर? व्हाट इज cos ऑफ 0 स्टूडेंट्स? 1. 1. व्हाट इज cos ऑफ 180? -1. तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? Plus +1. सो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2. 2. तो कैन आई से वर्क डन इज मैक्सिमम एंड दैट इज इक्वल टू 2PE। तो अगर किसने पूछा व्हाट इज द फार्मूला फॉर मैक्सिमम वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, तो हमेशा 2PE होगा। कौन से पोजीशन में? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से स्टेबल इक्विलिब्रियम आने के लिए। क्या ये क्लियर हुआ सबको? Can I erase now?
Friends, did I do Gauss's theorem with you all? Yes, sir. And applications हो गया उसका Gauss's theorem के? हाँ sir. Yes. तो उसके formulas याद है किसी को? Can you give me the formula for electric field intensity for a point lying outside a charged spherical conductor? बताओ. Electric field intensity for a point lying outside a charged spherical conductor. The formula. नहीं याद ना? 1/4 pi epsilon naught. Anybody who can complete? 1/4 pi epsilon naught. जल्दी. Q by R square. वेरी गुड. ऊपर जो Q आता है वो कौन सा आता है? इफेक्ट वाला आएगा या सोर्स आता है? Source one. वेरी गुड, वेरी गुड. ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुआ. अगर मैंने वही ए शेप एनी शेप कंडक्टर अगर मैंने ले लिया है, इफ आई गो फॉर एनी शेप कंडक्टर इन दैट केस, तो बताओ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर एनी शेप कंडक्टर फॉर अ पॉइंट लाइन क्लोज टू इट? E is equal to sigma upon epsilon 0. Agreed, students? समझ में आ रहा है? E is equal to sigma upon epsilon 0. We consider. क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes sir. Okay. And I told you very clearly कि कभी भी कोई भी any asymmetrical shape या कोई भी shape conductor होगा तो electric field intensity near a charged conductor we consider is always sigma upon epsilon 0 we consider. Okay, epsilon 0 we consider. Is that clear? Next, suppose if I happen to consider if I put forward for an infinitely charged sheet, okay, infinitely charged sheet. Can you give me what about the electric field intensity for an infinitely charged sheet? का क्या होगा? बताओ students. For a point closer to an infinitely charged sheet, जल्दी से. E is equal to sigma upon 2 epsilon 0 या 2 के epsilon 0. बता रहे कि नहीं बता रहे स्टूडेंट्स? क्या करो तुम लोग? ये इनफाइनाइटली चार्ज शीट मैंने लिया था, पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज पे मैंने गॉसियन सिलेंडर यहाँ पे भी बनाया था, गॉसियन सिलेंडर यहाँ पे भी बनाया था, फिर यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया था, ये ds और एक ही डायरेक्शन में जा रहा है. एग्रीड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कंसीडर इज, अगर मैं बोलूँ टोटल फ्लक्स क्या है, फ्लक्स ड्यू टू 1 प्लस फ्लक्स ड्यू टू 2, ये पोजीशन 1 ये पोजीशन 2 दोनों का ऐड होगा. एग्रीड. And what exactly total electric flux we consider? The total electric flux we is equal to what exactly? It's Q upon K epsilon 0 for a medium आएगा तो दोनों का क्या हो जाएगा? Q होगा upon K epsilon 0. I consider in that case. Is that clear? The total electric flux अगर तुम लेते हो तो क्या हो जाएगा? 2Q upon K epsilon 0. ये तुम्हारा flux हो जाएगा. Agreed. What is E equal to? What is E is equal to? We consider in terms of. Can I write this in case of sigma? Yes, E is equal to what? Sigma upon K epsilon 0, and sigma is what we consider. Charge upon area I can consider. I can write in terms of charge upon area I can consider. तो यही चीज तुम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सिग्मा अपॉन 2 के एप्सिलॉन 0. ये क्या होगा? फॉर बोथ द साइड्स. एनी साइड होगा तो एक 2 निकाल देना. स्टूडेंट्स, क्या ये क्लियर है सबको? Yes sir. Now let us go further ahead. Let us go for a derivation for electric field intensity, students. Answer सुनना. Electric field intensity at a point along the axis of a dipole. Formula for electric field intensity में लिखना, students ध्यान से लिखना. E is equal to what? 1/4 pi epsilon naught K. Is that clear?
Q by R square, ये इसका फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम और वोल्ट मीटर इनवर्स। अभी हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट मालूम है? हम फाइंड आउट कर रहे हैं फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आंसर सुना, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक field intensity we consider. Is that clear? Electric field intensity we consider for a point along the axis. We consider for a point along the axis we consider of a dipole we take. Okay, suppose मैंने दो चार्ज दिए हैं. Okay, the two charges if I haven't given to you. So I want to find electric field intensity. There is an electric field intensity along the axis. Students, ये मैंने derivation किया है कि नहीं किया इसका? हाँ students, did I do this? मैंने एग्जैक्टली ऐसा वाला किया मैग्नेटिज्म में, अगर तुम्हें याद हो तो। इसका शायद मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं किया करके। इसका अगर तुम मैग्नेटिज्म की सब जगह तो मैंने बताया होगा, ये है साउथ, ये है नॉर्थ, ये है एक्सेस, कुछ याद आ रहा है? फिर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बी, और फिर मैंने बोला था कि यहाँ पे व्हाट एग्जैक्टली बी अलोंग द एक्सेस और बी अलोंग द इक्वेटर, और हमें एक फॉर्मूला मिला था बी एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस बी इक्वेटोरियल, है ना? वैसे ही हम इसको निकाल रहे हैं। ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और चिराग, सर्टेन स्टूडेंट्स को रिमेंबर है, ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के हिसाब से। अभी चलो स्टूडेंट्स, कैन एनीबॉडी गिव मी द आंसर टू दिस? कैन यू गिव मी द आंसर टू दिस? यानी इफ इन केस अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो डांस देखना, ये तुम्हारा माइनस चार्ज है, ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉइंट O है, ये डिस्टेंस 2L है, यानी ये L हुआ, ये L हुआ। सेंटर से एक्सेस के ऊपर यहाँ पे पॉइंट P लिया है। अज्यूम करो कि यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, अजम्पशन है ये डिस्टेंस कितना मैं लेता हूँ? R लेता हूँ मैं। तो पॉजिटिव चार्ज से कितना दूरी पे होगा सर? ये होगा R माइनस एल। और नेगेटिव चार्ज से क्या दूरी पे होगा? R प्लस एल। क्या इतना क्लियर हुआ सबको? इज द डायग्राम क्लियर विद एवरीबॉडी? Yes, sir. Okay, I've taken an electric dipole we consider. Okay, and this electric dipole moment if I have to consider, I've taken a point P along the axis of the dipole. मैं ये वाला derive कर रहा हूँ students, equator वाला तुम्हें derive करना। Equator one students, you all only derive it. Is that clear? So now let us go for this derivation in this case. तो इसका अगर तुम derivation करते हो तो क्या होगा? ये R minus L और R plus L होगा। Agreed? Now if I want to speak about electric dipole moment, तुम क्या बोलोगे? ध्यान से देखना students, तुम बोलोगे सर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये हमारा जिस पे इफेक्ट हो रहा है ना, और ये हमारा डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये मेरा सोर्स है और इसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है, और ये नजदीक है, ये चार्ज इसके नजदीक है, तो इसकी वजह से इसको क्या मिलेगा? सर फोर्स ऑफ रिपल्शन मिलेगा, जिसको मैं लिखूंगा E1 ड्यू टू माई चार्ज 1 जो पॉजिटिव है। लेकिन उसी टाइम पे ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा? सर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा, लेकिन तुरंत अगर तुम देखोगे तो बोला सर नेगेटिव चार्ज इससे तो R प्लस एल की दूरी पे है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगी। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? सर जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो ये इस तरफ जाएगा। यानी स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये होगा स्मॉलर मैग्नीट्यूड, ये होगा लार्जर मैग्नीट्यूड, ये होगा इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी फॉर चार्ज 2। आर द टू इंक्स क्लियर, रेड इंक एंड ब्लू इंक? Yes, sir. ओके, नाउ अगर किसी ने पूछा मुझे व्हाट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, तो क्या करोगे तुम? तो बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो दोनों की वजह से हो रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डाइपोल की वजह से हो रहा है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं वेक्टर में लिखूं तो कैसा होगा? सर वेक्टर फॉर्म में तो E1 बार आएगा प्लस E2 बार, लेकिन अगर आपको मैग्नीट्यूड में चाहिए तो क्या होगा? सर ये दोनों वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। कैन आई यूज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos of 180, cos of 180 is -1, रिमूविंग द रूट क्या मिलेगा? E1 माइनस E2। क्या ये क्लियर हुआ?
क्या ये क्लियर हुआ? और मैंने E1 माइनस E2 क्यों लिखा? मैंने E2 माइनस E1 क्यों नहीं लिखा? तो तुरंत स्टूडेंट जो होगा वाई से को बोलेगा सर E1 ग्रेटर है ना सर, ये चार्ज नजदीक है तो इसके इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ये तो दूर है, इसलिए आपने इसको लंबा एरो दिखा है तो छोटा एरो दिखा दिया। An electric field vector is electric field is a vector. Length of the arrow determines the magnitude. Arrowhead shows a direction. और इसका डायरेक्शन इस तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि सर फोर्स ऑफ रिपल्शन उस तरफ जा रहा है। इसका डायरेक्शन इस तरफ क्यों आ रहा है? क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। यानी तुम्हारा जो कंसेप्ट जा रहा है स्टूडेंट्स एग्जैक्टली मैग्नेटिज्म के हिसाब से जा रहा है। क्योंकि मैग्नेटिज्म में भी स्टूडेंट्स तुम लोग ने पढ़ा है अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट, लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल। क्या इतना क्लियर हुआ? तो ऑल द स्टूडेंट्स इनसाइड द लेक्चर्स, all the students who are within the lectures, the strength is right now 34. प्रजापति, सत्यम, बंदलवरकर, पटेल, जीविता, अभिषेक, अमित, भावना, चिराग तो आंसर कर रहा है, धारा, एल्विस, दसफर इज आंसरिंग, हिमांशु पांडे, जानवी, करण, कशिश, कोमल, मालव जोशी, सो मच जाना मालव, मनस्वी, नेहादीप, निखिल, पार्थिव, संकेत, प्रेरणा, यश, तना, सिद्धार्थ, श्वेत, नकुर। These students understand it properly, okay? ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारे 12th के लिए भी। अभी अभी हाँ सर, अभी दोनों का फॉर्मूला डाल दो। दोनों का फॉर्मूला मालूम है? हाँ सर आपने दिया ना, ये देखो फॉर्मूला, देखो ई रिजल्टेंट क्या होगा सर, E1 का फॉर्मूला ये आएगा। ध्यान से देखना, अभी मैं इसको क्या एक कांस्टेंट ले लेता हूँ, ये मैं इसको क्या ले लेता हूँ, मैं C डिनोट करता हूँ, कूलम्स कांस्टेंट, ओके, बड़ा C। देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा सर, बड़ा C तो आएगा। E1 के लिए चार्ज क्या होगा सर, यहाँ पे चार्ज क्यों आएगा, पॉजिटिव चार्ज है, अपॉन क्या है सर, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस स्क्वायर कितना है, हाँ सर ये होगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस, हाँ सर माइनस आया। E2 के लिए क्या होगा सर, ये तो C वापस कांस्टेंट आएगा। चार्ज सर सेम ही है बिकॉज ये डाइपोल है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन नेचर। एंड ये मैंने बताया था तभी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस करो स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना और लिख लेना अगर हो सके तो। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर तुम प्रॉब्लम सॉल्व करो या फोर्स के प्रॉब्लम करो, नेचर नहीं लेते। पोटेंशियल्स की हम लोग ने जब प्रॉब्लम किया तो वहां पे मैंने नेगेटिव साइन डाला था, पॉजिटिव साइन डाला था फॉर दैट चार्ज। पोटेंशियल के प्रॉब्लम्स करते हो या पोटेंशियल एनर्जी के प्रॉब्लम करते हो तो प्लीज यूज द नेचर ऑफ द चार्ज ऑल्सो, भूलना नहीं। इसके लिए तुम्हें नेगेटिव चार्ज डालने की जरूरत नहीं है। This is CQ and minus CQ we consider upon what is the distance? What is the distance? So negative चार्ज से डिस्टेंस होगा r plus l the whole square. Agreed? अब यहाँ पे तुम्हारा कांस्टेंट क्या होगा? तो ऐसे करते हैं ना, CQ को मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P आ गया बाहर, Q भी बाहर आ गया। ब्रैकेट में क्या होगा सर, ब्रैकेट में 1/r minus l the whole square plus 1/r plus l the whole square। अभी सॉल्व करो, LCM निकालते हैं, तो r plus l the whole square, agreed, minus r minus l the whole square upon what exactly we consider, तो ये होगा r minus l the whole square और ये होगा r plus l the whole square। क्या इतना क्लियर हुआ सबको? रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ सर। स्टूडेंट, ये जो रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ये कहाँ पे सर, ये एक्सिस के ऊपर है एट अ पॉइंट P। इसको अभी हम सॉल्व करते हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली E along the axis of a dipole, तो क्या होगा सर, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K तो है ही। ब्रैकेट में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये देखो, ये हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी अपॉन r minus l the whole square, r plus l the whole square। तो कैन आई से दिस इज a minus b, a plus b, ये क्या होगा, a square minus b square is a power of 2। क्या ये क्लियर हुआ मैथ्स स्टूडेंट्स, ये मैथ्स क्लियर हुआ सबको? यस सर। ऐसा तो आई फील लाइक दैट कि सच्ची आई डोंट हैव टू, ये जो स्टूडेंट्स है ना, सो मेनी स्टूडेंट्स आर हियर राइट नाउ। अगर मैं देखूं देयर आर 32 स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 32 में से सिर्फ 3 का ही मैं लेक्चर दूं, ऐसा फील हो रहा है।
बाकी तो 30 ऐसे ही बैठे, पता नहीं व्हाट दे आर डूइंग. Actually, there are hardly 3 students are there who are responding, and the parents are looking into it or not. I don't understand that at all. Okay, students, come back. मैं तो इसको सॉल्व करो. तो सोल्यूशन में क्या आएगा सर? ये और ये कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे सर आर और आर कैंसिल हो जाएगा. बचा क्या? ई अलोंग द एक्सिस क्यू है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के है. यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये आर प्लस आर कितना होगा? 2r. एल प्लस एल 2l. तो कहने से 2l, ये 2l इंटू 2l, तो 2l इंटू 2r. एग्रीड अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज पावर ऑफ 2. एग्रीड स्टूडेंट्स? क्या ये क्लियर हुआ? Yes. अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, व्हाट इज q इंटू 2l? व्हाट इज q इंटू 2l? P. प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज, एब्सोल्युटली करेक्ट. प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज इन द डिस्टेंस, तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कूलम मीटर, इसका यूनिट हुआ. तो कहना है ना q इंटू 12 को मैं p लिख सकता हूँ. हाँ सर, आप p लिखो. ये 2 को मैं आगे डाल रहा हूँ, ध्यान से देखना. इसको मैं p लिखूंगा मैं, ये r यहाँ पे लिखूंगा मैं, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k फॉर अ मीडियम. ब्रैकेट में क्या होगा? r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर इज पावर ऑफ 2. एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर resultant electric field intensity along the axis of a dipole. लेकिन point P is at a distance r from the center of the dipole. तो ये फॉर्मूला, क्या इतना क्लियर हुआ सबको? Yes. इतना क्लियर हुआ? अभी सपोज अगर मैंने बोला डाइपोल शॉर्ट है, अगर मैंने डाइपोल को बहुत शॉर्ट लिया, उसका मतलब मुझे बताओ ये दो पॉइंट्स मुझे कभी बहुत छोटे दिखेंगे. एट प्रेजेंट अगर मैं देखता हूँ तो ये दो पॉइंट्स मुझे फाइनाइट डिस्टेंस पे दिख रहे हैं. यानी यही तो बॉडी अगर मैं लंबा उनको दूर कर दूं, बहुत दूर से इसको देखो, तो फॉर मी व्हाट एग्जैक्टली कैन आई से द टू पॉइंट्स विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर. यस, एग्जैक्टली सेम थिंग यहाँ पे भी. अगर सपोज मैंने पॉइंट पी को बहुत दूर ले लिया होता, और वहां पे तुम्हें खड़ा किया होता मैंने, और मैंने बोला था भाई अभी डाइपोल को देखो, क्या डाइपोल के अंदर तुम्हें फाइनाइट डिस्टेंस दिखाई दे रहा है? तुम बोलोगे नहीं सर, डाइपोल तो मुझे एक ही दिखाई दे रहा है, मर्ज एकदम सेम दिखाई दे रहा है. तो उसका मतलब क्या होगा? मेरा डाइपोल शॉर्ट हो गया है. तो अगर किसी ने पूछा, गिव मी द फॉर्मूला फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर short dipole. The answer देखना students, for a short dipole, what exactly have to consider? So for a short dipole, we consider is what? Your r square, sorry, your L square we consider. Agreed? Your L square we consider is much more we consider in comparison to r we take it. Is that clear? So in this case, what exactly consider? Your L will be very small in comparison to r we consider. So difference also will be very small in that case. I get it? तो मैं क्या करूँगा? L को neglect कर दूंगा मैं. यानी ध्यान से देखना, तुम्हारा लेंथ ऑफ द डाइपोल जो होगा ना L या 2L, वो छोटा हो जाएगा इस कंपेयर टू L स्क्वायर, और छोटा हो जाएगा. तो क्या करोगे सर? इसको निगलेक्ट कर दो. अब ये फॉर्मूला में से इसको निगलेक्ट कर दिया, तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा? E अलोंग द एक्सिस. किसके लिए? शॉर्ट डाइपोल के लिए. फॉर्मूला क्या होगा सर? 2 तो आएगा, P आएगा, P भी आएगा. डिनोमिनेटर में क्या होगा सर? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K फॉर अ मीडियम आएगा सर. L को आपने निगलेक्ट कर दिया, ध्यान से देखना. L स्क्वायर को निगलेक्ट किया तो नीचे क्या आएगा? तो नीचे आएगा r स्क्वायर इज पावर ऑफ 2. न्यूमरेटर में क्या है? न्यूमरेटर में r ऑलरेडी है, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? r अपॉन r रेज टू 4. एक कैंसिल हो गया, तो कैन आई गेटिंग r क्यूब. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Is it clear with everybody?
Himanshu is saying it yes. Chirag Menton is saying it yes. Kasafar, fine. Himanshu Pandey is also saying it yes, sir. ये तुम्हारा फॉर्मूला E along the axis. यही तुम्हारा मैग्नेटिज्म में हम लोग ने किया था ना भाई. B along the axis to P की जगह पे क्या आता था? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आता था कैपिटल L. ये क्या था? म्यू नॉट अपॉन 4 पे आता था. नीचे आज की बात है. समझ में आ रहा है? तो ये हुआ हमारा E along the axis of a dipole. अभी now I want you to give me the answer for this. Suppose अगर यही point मैंने पोल्स पे लिया होता at a distance r from the center, तो can you find out the formula for this? चलो derive करके बताओ पोल्स के लिए. Anybody who can derive it for poles? Get me the answer fast. Derivation for pole. Is anyone for derivation for poles? I want to find out electric field intensity at a distance small r. Sorry, at the equator, not at poles. At the equator, we consider distance small r from the center of an electric dipole. We have got the formula for E along the axis. I want to give me the answer for E along the equator. A perpendicular bisector to axis is called an equator. तो मुझे यहाँ पे चाहिए at point P. No, my dear. अरे मुझे E का फॉर्मूला चाहिए. हेलो, ये क्या लिखा है? P is equal to क्या लिखा है तुम लोगों ने? हाँ, चिराग gang. Yes, sir. P is ये क्या है? P is equal to 12. My dear, मुझे E का फॉर्मूला चाहिए. ऐसे में चाहिए मुझे. एक तो ऐसा वाला चाहिए और एक ऐसा वाला चाहिए. एक शॉर्ट डायपोल के लिए चाहिए. सॉल्व करो. वेक्टर्स होगा स्टूडेंट. वेक्टर्स लेके करना है. I'm waiting for y'all. I'm waiting for 3 minutes. Come on, fast. Solve. का हो अजित वाडकर. काय झाला? बाहेर गेलो होतो तुम्ही. अजित वाडकर कशाला बाहेर पडलो तुम्ही? काय झालं? नेटवर्कचा इश्यू आहेत का तुमचं? आणि कुठल्यातून दुसरं कोण आहेत? परमार. Anybody? Come on, fast. सर बस 2 हट जाएगा, बाकी सेम है. हाँ, क्या बोल रहे हो? सर बस 2 हट जाएगा. 2 हट जाएगा. हाँ. एब्सोल्युटली. और नीचे क्या आएगा? यही आएगा. हाँ, इसके लिए 2 हट जाएगा. ये फॉर्मूला चेंज होगा ना. क्या कर रहा है तू? माना कि शॉर्ट डायपोल का बात अलग है.
Is anybody? Shall I solve it for you all students? Shall I solve it? Solve करूँ मैं? आया ना बोल दो ना, उसमें क्या है? तुम्हें solve नहीं कर रहे हो, so I need to solve it. अभी बोल दो तो अभी just now I'll do it right now. चिराग, ये तो सही है my dear, ये short dipole के लिए होगा. लेकिन if I take a point P at a distance small r and for a finite dipole length, तो क्या होगा? ये तो short dipole के लिए होगा. Shall I solve it, students? If very few students okay, अभी आंसर सुनो. ये चिराग सिंह yes solve it. Please students अभी आंसर देखना. ये जो मैंने किया है ये शॉर्ट डाइपोल के लिए गजफर और चिराग ने दोनों ने आंसर. तो मैं क्या करता हूँ, मैं यही आंसर यहाँ पे लिखता हूँ. E along the equator और शॉर्ट डाइपोल के लिए तो फॉर्मूला क्या होगा? P अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K फॉर अ मीडियम और नीचे R की वैल्यू वोल्ट मीटर इनवर्स या न्यूटन कूलम. सो ये फॉर्मूला है. Okay, so E along the axis is twice E along the equator. अभी तक मैं बाकी सबको मैं मिटा देता हूँ. ये फॉर्मूला ध्यान रखना. ये देखो यहाँ पे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर इससे पावर ऑफ 2 है. एग्री? चलो इसको भी मैं रखता हूँ. The rest everything I'm erasing. I don't know how many people have copied the solution. I don't know about that. तुम्हारे ऊपर है कैसा भी तुम्हें करना. ध्यान से देखना students. अभी हम ये क्या है? ये E along the axis के लिए है for a finite distance. Okay? और इसी को शॉर्ट डाइपोल के लिए ये आता है. अभी देखो हम लोग पोल्स के लिए हम लोग इक्वेटर के लिए जाते हैं. सॉरी, ये देखो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये जो डिस्टेंस है वो 2l है, ये सेंटर है और मैंने एक पॉइंट भी यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और ये आर लिया. अब मुझे स्टूडेंट ये बताओ, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है, ये एल है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस इज माय फर्स्ट चार्ज, दिस इज माय सेकंड चार्ज, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज 1 एंड पी. तो मुझे सर अगर मैं इसको एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? रूट ऑफ क्या हो जाएगा? तो आई थ्योरम ऑफ पाइथागोरस विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस विल बी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. वही यहाँ पे भी वैसे ही होगा. एब्सोल्युटली करेक्ट. अभी देखो हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं. तो अगर मैं ये पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ स्टूडेंट, ध्यान से देखना, रेडिंग देखो, ये पॉजिटिव चार्ज 1, ये भी मेरा पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से क्या होगा सर? ये सोर्स है, ये इफेक्ट है, ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 1. एग्रीड? क्या ये क्लियर है सबको रिपल्शन के हिसाब से? ये तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है, ये 2 है,
और ये पॉजिटिव है, ये सोर्स हुआ, इस पे इफेक्ट हो रहा है तो ये इस तरफ होगा। ये क्या होगा सर, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज टू। एग्रीड स्टूडेंट्स? तो रिजल्टेंट किस तरफ होगा, रिजल्टेंट किस तरफ होगा सर? ऐसा करते हैं ना, ये वेक्टर को शिफ्ट कर दो पैरेलल, तो अगर इसी को मैं शिफ्ट कर दूं पैरेलल, ऐसा आता है मेरा। तो टेल है मेरा, रिजल्टेंट किस तरफ जा रहा है, रिजल्टेंट किस तरफ जा रहा है, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर, तो ये हुआ मेरा रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट। अभी सपोज मैंने ये एंगल को थीटा लिया है, ये एंगल थीटा लिया है, तो कहने से अगर ये थीटा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल में ये थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल में ये थीटा होगा। क्या क्लियर हुआ सबको, इतना क्लियर है सबको? Yes, एंगल sir. थीटा। Now if I want to go for the direction of electric field का resolution, resolve this E1 into two components। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये देखो प्लस चार्ज यहाँ पे, पॉइंट P यहाँ पे, E1 इस तरफ जा रहा है, एग्रीड। रिजल्टेंट इस तरफ जा रहा है, फॉर्मिंग एन एंगल थीटा। कैन आई रिजॉल्व दिस E1 into टू कंपोनेंट्स? बोले हाँ सर, ये होगा E1 cos थीटा और ये जाएगा E1 sin थीटा। अरे हाँ सर, अभी हम E2 लेते हैं, E2 का डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है, एग्रीड। इज दिस क्लियर? E2 का डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है, ये भी थीटा आ रहा है, देखो ना ये भी थीटा है। E2 को अगर मैं रिजॉल्व करूंगा तो ये क्या होगा, तो ये होगा E2 cos थीटा और ये होगा, ये है E1, तो ये है E2 sin थीटा। अभी मुझे बताओ, क्या स्टूडेंट्स E1 sin थीटा, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा आर दे इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आर दे इक्वल इन मैग्नीट्यूड? तो मिलेगा हाँ सर, E का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ E? E is equal to what, 1/4 pi epsilon naught K for a medium, Q upon R square, है ना? देखो Q दोनों में सेम है, R स्क्वायर तो ये डिस्टेंस दिया है, एंड साइन ऑफ थीटा सेम है, तो ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. तो हमारा रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किस डायरेक्शन में जा रहा है, हमारा जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किस डायरेक्शन में जा रहा है सर? हमारा रिजल्टेंट तो इस Cos theta. डायरेक्शन में था, ये ER है, तो कहने से इन दोनों डायरेक्शन में थोड़ा सा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर इन दोनों का एडिशन होगा, E1 cos theta plus E2 cos theta, and we know that E1 is equal to E2, मैग्नीट्यूड सेम है, थोड़ा सा रिजल्टेंट 2E1 cos theta या कोई लेगा 2E2 cos theta। अभी क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, अभी क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. now can anybody solve and do it? Now anybody can solve and do it? Solve it fast students, come on fast. Anybody? Anyone please, now please solve it and get his answer.
Come on, students, I'm waiting for you all. Any one of you all. 30 in the room. 30 in the room. Any one of you all. प्रजापति, सत्यम, बनवलकर, पटेल, जीविता, अमित, चिराग, धारा, गजब, जानवी, कशिश, घोष, करण, कोमल, कृषा, मालव, निदित, मानसी, प्रेरणा, शरद, श्वेता, सिद्धार्थ सिंह, कहानी, यश। सो हम नुपु ने तो आंसर बंद कर दिया, कभी आंसर पहला आंसर देती थी नुपु। मनस्वी, पवन, अमित, जीविता, धारा, it seems that I have to solve it. Okay, so let's listen carefully. This is twice E1 cos theta. Notice E1. What is E1? So E resultant is equal to twice. What is E1 we consider? So E1 is the electric field due to this positive charge. And formula is what? 1 upon 4 pi epsilon naught. So I write on 1 upon 4 pi epsilon naught K for a medium. Okay, 1 upon 4 pi epsilon naught K we consider. Is that clear? Q upon R square students. ये देखो Q तो Q आ गया. R square का मतलब क्या हुआ? इसका स्क्वायर होगा. एग्री स्टूडेंट्स? फिर इसको स्क्वायर कर दो तो क्या होगा? फिर ये रूट चला जाएगा तो नीचे क्या होगा सर? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Okay, now can I substitute that for E resultant in this case we consider? Is that clear? पीछे क्या दिया है? Cos theta. What is cos theta, students? What is cos theta in this right angle triangle, students? Cos theta is what? So cos theta is adjacent upon hypotenuse. So it's L upon root of R square plus L square. So can I write on this as into L upon, नीचे क्या होगा? R square plus L square ratio power of half. क्या ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Everyone. Now solving it further. Can I say this is a raised to m. A raised to m into a raised to n. ये देखो, this is also R square plus L square. This is also R square plus L square. A raised to m into a raised to n. So a raised to m plus n. So now can I rewrite it? Yes, E resultant along what? Along the equator. Along the equator will be equal to what? What is Q? What is Q into 12, students? What is Q into 12 in the numerator? That will be Dipole. dipole moment we consider. Upon what exactly I'm going to get it? So this is 4 pi epsilon naught K for a medium. This is a raised to m into a raised to n. So 1 plus half, what exactly I'm going to get? It's R square plus L square raised to the power of 3 by 2. And this answer will be Newton Coulomb inverse or voltmeter inverse. Now have a look at both the formulas. जब ये axis के ऊपर finite distance होगा तो see R square minus L square the whole square, and there is R in the numerator.
But if I happen to go take it as an equator, it's r square plus L square is the power of 3 by 2. Are you getting it? And simply P. There is no small r over here. But now suppose if I happen to go for a short dipole, uska matlab, think that this particular point is very far off. सोचो कि तुम पॉइंट पहले पी के पे थे और ये दोनों पॉइंट्स तुम्हारे नजदीक थे, अभी तुम्हें सपोज दूर भेजा गया, तो तुम्हें दो, अगर तुम दूर चले गए तो वही दो पॉइंट्स तुम्हें बहुत नजदीक दिखेंगे, तो वो शॉर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं दूर चला जाता हूं तो आर तो बहुत बढ़ जाएगा इन कंपैरिजन टू एल, तो मेरा एल इतना छोटा हो जाएगा, उसका स्क्वायर भी उतना ही छोटा हो जाएगा, मैं उसको निगलेक्ट कर सकता हूं। तो अगर मैं निगलेक्ट कर दूं स्टूडेंट्स, तो शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या आंसर आएगा? तो सर आप निगलेक्ट कर दो, एल को निगलेक्ट कर दो, इसको निगलेक्ट कर दो, एग्रीड। अगर इसको निगलेक्ट करोगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? R r cube. square raised to power of 3 by 2, 2 into will get cancel, क्या बचा डिनोमिनेटर में? r cube। देखो p t 4 pi epsilon k divided by only r cube. From here we come to conclusion that P along the axis is always twice E equatorial. Agreed students? क्या ये clear हुआ सबको? Yes, sir. Okay. Those who want to write on, please copy it down. It's very important, students. और तुम्हारा जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है 11 का हो गया है, we are on the verge of 12 के अंदर हम लोग ऑलरेडी किया reached. So now no more saying it कि हमारा 11 नहीं हो रहा है, please. अगर complete हो जाता है तो please let me know about it. Okay, you can unmute yourself and say it's done, so I can erase it fast. और जो भी स्टूडेंट्स अगर कॉपी भी करते हो ना स्टूडेंट्स, rather than blindly copying it from the board, एक एक 2 मिनट एक्स्ट्रा एफर्ट लेके अपने आप तुरंत उधर डिराइव कर दो ना, अभी का अभी डिराइव कर दो, तो तुम लर्निंग भी कर रहे हो। जो स्टूडेंट्स आंसर देते हैं उनके लिए तो यही होना चाहिए। नो नीड टू लुक एट द बोर्ड, अपने आप से सॉल्व कर दो पूरा, तुम्हारी स्टडी यही कहीं हुई। हो गया स्टूडेंट्स? डन? I'm over here only, I'm not going anywhere else. Now please don't think in that manner. I'm going here and there. Okay. अभी एक तुरंत एक क्वेश्चन देता हूँ, एक प्रॉब्लम, लेट्स सी व्हेदर वी कैन क्रैक और नॉट।
Okay, so now please get attention. Okay. Let's see whether you can crack this or not. Now, this is now. यहाँ पे मैंने दिया है कि there are three charges, students. There are three charges which are placed at three corners of an isosceles triangle. Okay. ये base angles है, ये 90 डिग्री है, और तीन चार्जेस है A, B, C at three corners. सबका मैग्नीट्यूड दे देता हूँ और नेचर भी दे देता हूँ. ये है +10 माइक्रोकूलम, ये है +2 माइक्रोकूलम, और ये है +10 माइक्रोकूलम. क्वेश्चन ये पूछा गया है स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली. पूछा गया है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, magnitude and direction of resultant electric field intensity at point P, at point P, and point P is midpoint of hypotenuse. चलो सॉल्व करो. क्वेश्चन क्लियर है सबको स्टूडेंट्स? क्वेश्चन क्लियर है? तीन मैंने Yes. चार्जेस दिए हैं at three corners of an isosceles triangle. Okay. A 10 microcoulomb plus 10 microcoulomb plus 2 microcoulomb plus 10 microcoulomb. I wanted to find out the magnitude and the direction of the resultant electric field intensity at point P. और ये point P कहाँ पे है? Point P is the midpoint of the hypotenuse of the isosceles triangle so formed. I want one of you all to solve it properly and give me the correct answer. The most intelligent student of the class will be able to answer. Is anybody? Come on. A lot of time is taken. Follow.
Yes, Chirag. चिराग ही दिख रहा है, गजब पर पता नहीं चला कहाँ चला गया। क्या चिराग आंसर आ रहा है? यस भावना, साठम 12 पे। यस भावना साठम, मंडली। गजब पर है इधर ही। गजब पर ऑर्डर बराबर। इसका इसका डेसिमल का आंसर निकाल, 36/25 का डेसिमल का आंसर निकाल क्या आ रहा है? और ऑर्डर तेरा सही नहीं है मेरे भाई। नो आइडिया। इट्स 7। 7.44 आ रहा है डेसिमल। 1.44 is correct. Let me check out the order. अभी गजब पर मेरे को बता, what exactly you did it? कैसे करोगे बताओ। बताओ क्या करोगे। तो यहाँ पे शिवांत है, यहाँ पे तुम जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज गजफर है फिलर ही इज नोइंग दैट। हम लोग यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर, ये सोचो ना उसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो तुम बोलोगे सर आपने पूछा रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, तो कैसे करते मालूम है सर, ये जो चार्ज था ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है सर, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसका मैग्नीट्यूड सेम है। तो सर ये चार्ज ध्यान से देखना, ये क्या है सर, ये सोर्स है, ये सोर्स है, इफेक्ट इस पे हो रहा है, तो ये इसको क्या करेगा सर, इस तरफ रिपेल कराएगा, है ना। वैसे ही यहाँ पे कौन सा चार्ज, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड, तो ये चार्ज सोर्स बन जाएगा और ये इस पे इफेक्ट है तो ये इसको रिपेल इस तरफ कराएगा। अरे सर ये दोनों का फोर्स ऑफ रिपल्शन तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या होगा, दोनों का अगर रिपल्शन ऑपोजिट डायरेक्शन हुआ तो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या हो जाएगा, दैट मींस द रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0। टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नेट ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी जिस डायरेक्शन में स्टूडेंट्स फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। अगर सपोज मोर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सी, so both the electric field intensity are equal in magnitude opposite in direction, तो ये प्लस EC क्या बन जाएगा 0। अरे सर यानी इसके वजह से तो फील्ड है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है नहीं, तो बचा कौन सा चार्ज, ये बचा बी। बी का कौन सा है, बी का नेचर क्या है सर, बी भी पॉजिटिव ही है, भले 2 माइक्रोकूलम है, ये भी पॉजिटिव है, यूनिट मास सॉरी यूनिट चार्ज भी कंसिडर। तो अभी देखो ये सोर्स बन जाएगा, इस पे इफेक्ट हो रहा है, अगर ये मेरा सोर्स बन गया तो ये देखो ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल टू द हाइपोटेन्यूज, एग्रीड, इट्स 1/√2 टाइम्स, ये 45 डिग्री है, व्हाट एग्जैक्टली साइन ऑफ 45, तो साइन ऑफ 45 यानी ऑपोजिट साइड, agreed, upon hypotenuse we consider, अभी देखो hypotenuse is exactly same we consider, है getting it। अगर मैं सपोज इन दोनों का मैं यूनिट लेता हूँ, दोनों का सेम डायमेंशन, सपोज अगर मैंने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया, तो आई कैन टेक इट, डजंट मैटर इन दैट केस, तो आई कैन टेक इट सेम साइड वी कंसिडर। तो मेरा अगर मैंने इसको 5 लिया तो मेरा ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा, तो साइन ऑफ 45 इज 1/√2, तो ये क्या होगा 5/√2 into 10⁻⁻2 मीटर, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट साइड्स है, you can take 1 centimeter also and get solve, it doesn't matter, same I can consider। मैंने 5 सेंटीमीटर लिया, doesn't matter in that case। क्या ये क्लियर है, that's why Ghazafar is also correct in that case, अभी सॉल्व किया, इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट सबको, everyone। Yes. Sine of 45 is opposite upon hypotenuse, opposite मुझे चाहिए, hypotenuse को मैंने 5 ले लिया, I getting it।
तो साइन ऑफ 45 इज 1/√2, 5 उधर चला गया, लेकिन ये सेंटीमीटर में होगा तो मीटर में इंटू 10⁻²। अभी मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किस तरफ होगा? सर ये सोर्स है, ये इफेक्ट है, उसका फोर्स किस तरफ जाएगा? तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बी। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? So the direction of electric field intensity is along vector BP. डायरेक्शन आ गया। मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या होगा? सर मैग्नीट्यूड के लिए तो आपने कहा ई का फॉर्मूला क्या है? तो ई का फॉर्मूला आपने बोला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर अ मीडियम क्यू अपॉन आर स्क्वायर यानी बीपी द होल स्क्वायर। ये क्या है सर? ये तो कांस्टेंट है। के सर के यहाँ पे नहीं दिया है, यानी यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि वैक्यूम ही है, के की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो व्हाट एग्जैक्टली विल बी? इट्स 9 × 10⁻⁹। How much is the magnitude of this charge? 2 microcoulomb, so 2 × 10⁻⁶। dp को हम लोग ने क्या assume किया था? It's 5/√2 square करो, so it's 25/2 into what? 10⁻⁻⁴. Can you solve this? Agreed. And that becomes your resultant electric field intensity, which will get the answer in terms of 1.44 pascals. Also check the order also. Power. Students, क्या ये clear हो सबको? Should I erase now? Should I erase this? Okay. Okay. Now we move further, right? So we have done about this electrical intensity, dipole kiya, torque kiya, work done. I told you about Gauss's theorem, applications of Gauss's theorem. I told you now potential at a point due to an electric dipole also I told you. Agreed? Now we go for potential at a point due to a unit positive charge. Potential V at a point in an electric field due to a unit positive charge. हम लोग फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एट अ पॉइंट। अविनाश देखना, तुम वापस बोलेगा सर ये क्या आप वापस सिखा रहे थे चैप्टर? वापस पोटेंशियल पोटेंशियल कितने का पोटेंशियल? स्टूडेंट्स इसके पहला वाला जो हम लोग ने निकाला था ना, वो देखो ये -q, ये +q। प्लीज एवरीबॉडी लिसन केयरफुली। ये डिस्टेंस था, ये मैंने पॉइंट P लिया था, ये थीटा लिया था, r, थीटा हम लोग ने लिया था। तो फॉर्मूला हमें क्या मिला था? P cos थीटा मिला था अपॉन r² आया था और कांस्टेंट आ रहा था। फिर मैंने बोला था पोटेंशियल इक्वेटर क्या था? जब मैंने लेक्चर शुरू किया तो मैंने ये पूछा था प्लस माइनस का आंसर आया था। एक्सिस के ऊपर इक्वेटर पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा क्योंकि cos ऑफ 90। तो स्टूडेंट ये जो हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था ना वो डाइपोल के हिसाब से था। पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से नहीं है। यहाँ पे 2 चार्जेस थे, अब यहाँ पे 1 चार्ज। ये क्लियर हुआ? क्या पढ़ रहे हो? ये क्लियर हुआ तुम लोगों को? और ये सारी चीजें तुम्हें कहाँ पे मिलेगी? 12th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में मिलेगी। ओके, now students pay attention to this. मैं सपोज अगर मैंने पूछा पोटेंशियल एट अ पॉइंट, उसका मतलब क्या? ध्यान से देखना, ये मेरा चार्ज +q है, ये पॉइंट O पे है, ये चार्ज +q है, ये मेरा सोर्स बन जाएगा। तो ये जो चार्ज है उसका खुद का एक रीजन है अराउंड। इस रीजन को मैं क्या नाम देता हूँ? इलेक्ट्रिक
फील्ड जो हाइपोथेटिकल है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसकी कुछ स्ट्रेंथ है। वो स्ट्रेंथ को हम क्या नाम देंगे? ई बार। ई बार को अगर मैं बोलूंगा तो ये क्या है, तो तुम बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसके कितने फॉर्मूलाज है सर? इसके दो फॉर्मूलाज है। एक तो होएगा फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट टेस्ट चार्ज, और दूसरा आएगा, आपने बता दिया था, E इज इक्वल टू नेगेटिव dV बाई dr। कंसिडर, यानी ये तुम्हारा क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के हिसाब से आएगा तुम्हारा। इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर होता है वोल्ट मीटर इनवर्स और न्यूटन कूलम इनवर्स आ रहा है। अभी देखो, मुझे फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अभी ये सोचो कि मेरा एक चार्ज Q0 है, जो मैं इसको बोल सकता हूँ टेस्ट चार्ज। हाँ, इसको मैं बोल सकता हूँ टेस्ट चार्ज, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कौन सा चार्ज है, तो हमें टेस्ट करना है कौन सा चार्ज होगा। तो अगर मैंने पूछा मुझे टेस्ट करना है कौन सा चार्ज होगा, तभी क्या, कशिश, कशिश व्हाट एग्जैक्टली विल डू, विल गेट द चार्ज इनसाइड दिस। अगर कशिश ने चार्ज को यहाँ पे ले लिया और इस चार्ज को अट्रैक्शन मिला, तो तुरंत कशिश, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, नहीं नेगेटिव होगा। लेकिन अगर इसको रिपल्शन मिला तो बोलेंगे पॉजिटिव है। तो उससे पता चला कि नेचर पॉजिटिव नेगेटिव, इसका पता चला, टेस्ट चार्ज का पता चला। लेकिन अगर मैंने इसको टेस्ट चार्ज नहीं लिया, इसको मैंने टेस्ट चार्ज नहीं लिया और इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज पकड़ा, यानी मेरा सोर्स भी पॉजिटिव, मेरा ये चार्ज भी पॉजिटिव, लेकिन ये चार्ज कहाँ पर है, इंफिनिटी पे है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, ये चार्ज को इंफिनिटी से लेते हुए मैं पहले from infinity I'm taking this particular point initially somewhere at point A। ये पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट्स, मैं ए पे लेके आ रहा हूँ। ए कहाँ पे है, इसके रीजन में है। तो मुझे बताओ, जैसे मैंने चार्ज को यहाँ पे लेके आया तो क्या होगा, उसको अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा स्टूडेंट्स? यस कशिश, चिविता, चिराग, एंटर। क्या होगा, रिपेल होगा, है ना, उसको रिपल्शन मिलेगा, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन मिल रहा है। लेकिन फिर भी तुम क्या कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। दैट मींस देयर इज सम वर्क डन, देयर इज सम वर्क डन, and this work done to move a charge from infinity to point A we consider, so we call it potential at point A. So when I bring it over here, there will be some potential at point A we consider. अगर सपोज तुमने चार्ज पॉजिटिव जो इंफिनिटी है, अगर तुमने इंफिनिटी से उस चार्ज को बी पे ले लिया तो क्या करोगे? अरे सर बी तो और नजदीक है, एग्रीड, बी तो और नजदीक है, तो अभी क्या होगा, अगर बी नजदीक है तो क्या हो जाएगा, और एग्जैक्टली, तो सर बी नजदीक है तो यहाँ पे पोटेंशियल विल बी ग्रेटर बिकॉज मोर वर्क इज डन। तो ये तुम्हारा पोटेंशियल एट पॉइंट बी हो जाएगा। अभी देखो बी का डिस्टेंस इससे कितना होगा सर, ये होगा आर बी, और यहां से ये कितना होगा आर ए, है ना। बी नजदीक है, ए दूर है, तो कौन सा पोटेंशियल ग्रेटर हुआ, सो पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट ए। व्हाट इज पोटेंशियल एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एट पॉइंट बी का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एट पॉइंट का मतलब क्या हुआ, इट इज अ वर्क डन। प्लीज स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, इट इज अ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इतना सा चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी। तो कहने से ये हुआ मेरा डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एट अ पॉइंट, और ये आंसर होगा मेरा वोल्ट में। तो अगर किसी ने पूछा स्टूडेंट्स डिफाइन पोटेंशियल एट अ पॉइंट, तो क्या बोलोगे, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ये देखो, सी द पेन एंड सी हियर मी वेरी क्लियरली, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, लुक एट माय पेन। पोटेंशियल एट अ पॉइंट is defined as work done by unit positive charge to move from infinity to that point. Is this clear? वही अगर सपोज मैंने चार्ज को ए पे लिया होता तो व्हाट इज पोटेंशियल एट पॉइंट ए, इट इज अ वर्क डन
to move a unit positive charge from infinity to point B, sorry, point A, ये भी वोल्ट होगा। कहाँ पे तुम्हें ज्यादा काम करना पड़ा था भाई, हमें बी पे लेके आए तो वहां पे ज्यादा काम करना पड़ा था, क्योंकि बी बहुत नजदीक है, क्योंकि आपका चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पे मुझे ज्यादा रिपल्शन मिल रहा था, यहाँ पे मुझे कम रिपल्शन मिल रहा है। ये देखो छोटा एरो बड़ा एरो, लेकिन रिपल तो हो रहा है। तो एम आई डूइंग सम वर्क? यस, आई एम डूइंग सम वर्क। ये जो मैंने काम किया है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये काम कहाँ पे चला गया? हैज गॉट स्टोर्ड इन द चार्ज। The work done by me, the answer सुना students, the work done by me to move a charge from infinity to point B gets stored in the charge in the form of which energy? Electrostatic potential energy. तुरंत तुरंत स्टूडेंट का दिमाग चलेगा, अरे सर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ने डायपोल में भी पढ़ा, वहां पे एनर्जी स्टोर हो रही है। डायपोल को अगर मैं रोटेट करता हूँ, गेटिंग इट, पूरा उल्टा रखा तो पूरा फ्लिप होकर उस डायरेक्शन में चला गया। What exactly it is? So potential at point B is greater than potential at point A. So can I say there is some difference in potential? What's the whole of a difference in potential? तुम बोलोगे VB minus VA. VB minus VA का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Sir, work done to move a charge from infinity to B minus work done to move the same charge from where to where? From infinity to A. What's the formula for potential? What is the formula for potential at point B? Potential at point B का फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला मैं ऊपर लिखता हूं मैं। What's the formula? Sir, W upon Q. W का फॉर्मूला मालूम है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो तुरंत, अभी देखो इजीली याद रखना कैसे निकालते हैं। देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या? वर्क डन अपॉन चार्ज। प्लीज लिसन केयरफुली। वर्क का मतलब क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? कूलम्ब्स फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। सोर्स आएगा, इफेक्ट आएगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आया, ये किसका फॉर्मूला हुआ? फोर्स का फॉर्मूला हुआ। एग्रीड? मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है? आर। नीचे चार्ज, चार्ज कैंसिल हो गया, एक आर कैंसिल हो गया। अरे सर फॉर्मूला मिल गया पोटेंशियल। तो अगर पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तो फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? पोटेंशियल एट पॉइंट बी का फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर अ मीडियम। देखो ऊपर सिर्फ सोर्स आएगा स्टूडेंट्स, सिर्फ सोर्स आएगा, इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। अपॉन नीचे क्या आ रहा है? आर स्क्वायर नहीं आ रहा, सिर्फ आर आ रहा है। और कौन सा डिस्टेंस आएगा? सर आपने बी पे लिया तो आर बी, ये डिस्टेंस आएगा। क्लियर हुआ फॉर्मूला पोटेंशियल एट पॉइंट बी का फॉर्मूला? वापस बोल रहा हूँ, कैसे निकालते फॉर्मूला? ये डायरेक्टली है पोटेंशियल, ये तो 10वीं का फॉर्मूला है, सब लोग ने 10वीं पास किया है। पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन टू मूव अ चार्ज 1 वोल्ट 1 जूल 1 कूलम, सब लोग ने रट्टा मारा था। वर्क डन फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट, force is what? 1/4 pi epsilon naught capital Q small q upon r squared. R will get cancelled. Agree? ये R cancel हो गया, Q cancel हो गया, तो आगे मेरा फॉर्मूला। Agreed students? अभी मुझे बताओ फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एट पॉइंट ए, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो इसका फॉर्मूला मैं यही लिखता हूँ, इक्वल टू, तो देखो एग्जैक्टली कंपैरिजन में लिखो। फिर यहाँ पे भी आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर अ मीडियम। फिर यहाँ पे भी सोर्स है तो यहाँ पे भी सोर्स आएगा, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस आर भी है, यहाँ पे डिस्टेंस आर आएगा। इसका भी यूनिट वोल्ट, इसका भी यूनिट वोल्ट। एग्रीड? Yes, sir. अभी देखो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला चाहिए, तो क्या करोगे? फिर ये दोनों डाल दो ना फॉर्मूला यहाँ पे। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हुआ? डेल्टा वी यानी वीबी माइनस वी ए। वीबी का फॉर्मूला सर ये आया, वी का फॉर्मूला है, दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है? दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है? सर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर मीडियम कॉमन आ रहा है। हाँ सर वो कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट में क्या आएगा? सर ये आएगा 1/r भी आ गया। हाँ सर -1/r ए, ये भी आंसर वोल्ट में हुआ। कैन आई कॉल दिस एज पोटेंशियल डिफरेंस?
अगर मैंने यहाँ से छोड़ दिया होगा क्या? Is it clear? Charge. Students all students. Is it clear? Sir, your voice is breaking. Pardon? Yes. So is it clear, all of all? Yes, sir. स्टूडेंट्स सुनाई दे रहा है? ऑडियो वीडियो है बराबर? हाँ स्टूडेंट्स, हाँ सर, अभी बराबर है. ओके, तो ये समझ में आया पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला वीबी माइनस वी है. एग्री? ये समझ में आया? वीबी का फॉर्मूला मैंने डाल दिया, ए का फॉर्मूला डाल दिया, तो डिफरेंस इन पोटेंशियल आ गया. फिर मैंने बोला अगर बी हाई पोटेंशियल पे, ए लो पोटेंशियल पे, अगर मैं सपोज में वोल्टमीटर कनेक्ट करता तो मुझे क्या बताएगा? सही, ये मुझे बताएगा पोटेंशियल डिफरेंस. अगर सपोज मैंने चार्ज यहाँ पे रखा और मैंने छोड़ दिया तो चार्ज मोशन में आएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा? करंट फ्लो होगा. तो ये हुआ करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट. एग्रीड? So I gave you the formula for potential at a point. I gave you the formula for potential difference. अगर किसी ने पूछा what's the formula for work done, तो simply multiply ना, V into Q. अगर मैंने पूछा what is the work done का formula क्या होगा, तो इसके साथ में क्या करोगे? स्मॉल की मल्टीप्लाई कर दो, तो वर्क का फॉर्मूला हो गया. इसके साथ में अगर मैं स्मॉल की मल्टीप्लाई कर देता तो वर्क का फॉर्मूला हो गया. एग्रीड स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू ऑल? Yes, sir. Okay, please copy it down. Is that clear? Why 20? Where are the students? 21. Very good. Students, last 5 minutes. So, very good. They're very complete. Please let me know about that. Okay.
Okay, students. So now, in the last, till now, I've finished with the potential at a point, potential difference I told you, formula for work done also I've told. Okay. So now we are already into the 12th part of it. Gauss's theorem already मैंने बता दिया, Gauss's law भी मैंने बता दिया. Is that clear? Application भी उसके हो चुके हैं. अभी हम आगे जब बढ़ेंगे, तो we'll be solving certain questions related to work done due to system of charges, principle of superposition. तो मुझे याद दिलाना है कि we have to go for principle of superposition for potentials at a point and work done. जैसे वो तुम्हारा खत्म हो जाएगा, सीधा हम चले जाएंगे capacitors को. Agreed? Capacitors तुम्हारा हो जाएगा, उसका relation आ जाएगा. Then last will be a Venn diagram generator, and that will be your end of your topic. Okay, and that will pick it up in the next lecture. Is that clear? To revise करना formulas. Next lecture में homework आएगा तुम्हारे लिए. Okay, लेकिन learn करना और formulas revise करना. Okay, students. So we'll wind up the session. Okay.